નમસ્કાર. માનનીય સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રીના સતત પ્રયાસ અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે નેશનલ પોલિસી 2020ની જોગવાઈ પ્રમાણે રાજ્યના દરેક વિદ્યાર્થીને વોકેશનલ એજ્યુકેશનમાં પારંગત કરી તેમનો આર્થિક અને કૌશલ્યાત્મક વિકાસ થાય આ હેતુને વેગ આપવા સમગ્ર શિક્ષા ગુજરાતની વડી કચેરી તથા સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ જિલ્લામાં કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ અવિરત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાજ્યમાં વોકેશનલ એજ્યુકેશન હેઠળ ચાલતા 15 જેટલા વિવિધ ટ્રેડમાં ધોરણ 9થી 12માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દી ઘડી રહ્યા છે. તેમની કારકિર્દીને વેગવંતુ કરવા તથા નેશનલ પોલિસી 2020 પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને બિઝનેસ તથા ગ્લોબલ ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખી આજની આ એજ્યુકેશન સિરીઝમાં આપણે દેશની એક ખ્યાતનામ સંસ્થા પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે માહિતી મેળવીશું તથા તેમના દ્વારા કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે કે CSR હેઠળ ચાલતી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતગાર કરવા સંસ્થાના તજજ્ઞ શ્રી ચેતન સોલંકીનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તેમને વિશેષ માહિતી આપવા હું વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર, હું ચેતન સોલંકી પીડલેટ સંસ્થા તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન તથા તેમને સંલગ્ન તમામ ટીમ મેમ્બર્સનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજે અમને અમારી સંસ્થાને તથા અમદાવાદ ખાતે ચાલતા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ વિશે આપ સૌ યુવા મિત્રોને માહિતગાર કરવાનો અવસર આપ્યો છે. આપ સૌ યુવા મિત્રોને જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યું છે કે ગુજરાત ખાતેની પહેલી મેગા આઈટીઆઈ એવી અમદાવાદ સ્થિત કુબેરનગર આઈટીઆઈમાં પીડલેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સહયોગથી કાર્યરત સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ખાતે પ્લમ્બિંગ અને વુડવર્કિંગ અભ્યાસક્રમોના એડવાન્સ તાલીમ મેળવેલ રહેલા તાલીમાર્થીઓને સવિશેષ માહિતી આપવા આપ સૌ સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું. વર્ષ 1959થી પીડલેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બિલ્ડિંગ બોન્ડ્સ આ ધ્યેય વાક્યને સાર્થક કરવા મજબૂત ઇરાદાઓ સાથે કામ કરી રહી છે. આપ સૌ મિત્રો આપણા રોજિંદા જીવનમાં પીડલેટ દ્વારા નિર્મિત વિવિધ ઉત્પાદનો જેમ કે ફેવિકોલ, ફેવિક્વિક, એમસીલ અને રંગીલા કલર્સ ઇત્યાદિ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હશો. વર્ષ 2014થી ગુજરાત રાજ્યમાં પીડલેટ સંસ્થા દ્વારા CSRના ભાગરૂપે સમાજ કલ્યાણના અનેક કાર્ય કરવામાં આવેલ છે. CSR નીતિ અંતર્ગત અનેકો કાર્યક્રમ જેમાં મહિલા સશક્તિકરણ, શિક્ષણ, ખેતી, આરોગ્ય, પાણી સંગ્રહના અનેક કાર્યક્રમો અને કુશલ ઘડતર તેમજ અન્ય ક્ષેત્રોમાં નવીનતમ ઉપકરણો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. એ કાર્યક્રમો સામાજિક ઉત્થાનમાં ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. કૃષિ વિષય ક્ષેત્રોમાં આધુનિક ખેતીની વિવિધ પદ્ધતિઓથી તાલીમ ધરાવવા ખેડૂતોને સમૃદ્ધ અને સશક્ત બનાવવા માટે સંસ્થા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો આ નીતિ અંતર્ગત યોજવામાં આવેલ છે, જેનાથી ખેડૂતો વિશેષ લાભ લઈ રહ્યા છે. મહિલા મંડળનું સશક્તિકરણ કરવા માટે પીડલેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એમને ટ્રેનિંગ આપે છે, એમને મશીનરી આપે છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ પીડલેટ ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી આપવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારમાં પાણીની તંગી છે અને અછતની પરિસ્થિતિમાંનું નિર્માણ થાય છે એવા વિસ્તારમાં પીડલેટ સંસ્થા ગુજરાત સરકારની સિંચાઈ વિભાગ સાથે મળીને કામ કરી રહી છે, જેમાં ચેકડેમ બનાવવા, તળાવ ઊંડા કરવા અને અનેક પાણી સંગ્રહના કામો કરી રહ્યા છે. કૌશલ્ય બલમ અર્થાત કૌશલ્ય વ્યક્તિનો અખૂટ અને અતૂટ ખજાનો છે. કૌશલ્ય સભર વ્યક્તિ પાસે રોજગારની વિવિધ તકો રહેલ છે. 2014થી પીડલેટ સંસ્થા બાંધકામ ક્ષેત્રમાં અનેક કામો અનેક ટ્રેડ જેમ કે કાર્પેન્ટ્રી, ઇલેક્ટ્રિકલ, પ્લમ્બિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન વગેરે ટ્રેડોમાં તાલીમ આપવા હેતુ સહયોગ આપી રહી છે. આ જ સહયોગના અંતર્ગત અમે વુડવર્કિંગ અને પ્લમ્બિંગ અભ્યાસક્રમોની વિશ્વવ્યાપી માંગને ધ્યાનમાં લઈ આગામી સમયમાં ઉદ્યોગ જગતની તેમની માંગ મુજબ કુશલ માનવ બળ પૂરી પાડી શકાય તેવા હેતુથી કુબેરનગર આઈટીઆઈમાં બંને અભ્યાસક્રમોના એડવાન્સ તાલીમ માટે થનાર તમામ ખર્ચ પીડલેટ દ્વારા આપવામાં આવશે. વુડવર્કિંગ અને પ્લમ્બિંગ અભ્યાસક્રમોમાં જે પણ ખર્ચ થશે એ પીડલેટ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવશે. જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ વિદ્યાર્થીગણ ત્યાં એડમિશન લેશે એ કોર્સિસમાં જે પણ ખર્ચ થશે રહેવાનું અને કોર્સનું એ ખર્ચ પીડલેટ તરફથી આપવામાં આવશે. અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીને સરકાર માન્ય પ્રમાણપત્ર મળી રહે તેવા હેતુથી ઉક્ત અભ્યાસક્રમો કૌશલ્ય ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ છે, જે રાષ્ટ્રની ખ્યાતનામ યુનિવર્સિટી છે. પ્રસ્તુત વિષય પર વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા માટે ઉપસ્થિત મારા સાથી મિત્ર ડૉક્ટર નરેન્દ્રસિંહ
જેમણે વર્લ્ડ સ્કિલ કોમ્પિટિશન અંતર્ગત વિવિધ દેશોમાં નેશનલ એક્સપર્ટ તરીકે રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલ છે, એ આપને વધુ માહિતી આપશે. सभी को नमस्कार. अभी मेरे कलीग चेतन जी ने आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पीडीलाइट सीएसआर में क्या कर रहे हैं और एक बहुत स्पेशल उनका स्किल डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में अभी आपसे चर्चा की. तो अभी मैं आज के इस सेशन में स्किल इनिशिएटिव को ही थोड़ा सा आगे आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा. और हमारा टॉपिक आज रहेगा कि स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या अवसर हैं, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो इस सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं आज, सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है और इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ का क्या एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा हम उसको समझेंगे ताकि हम एक डिफरेंस को समझ पाएँ कि उधर के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे स्किल एजुकेशन सिस्टम में कैसे क्या डिफरेंसेस है. बाहर के देशों में जो ग्लोबल वुडवर्किंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसे बच्चों को सहायता करती हैं स्किलिंग में, उनके कैरियर को आगे बढ़ावा देने में. और इसी बेसिस पे जो हमने आज एक सेशन रखा है, उन चीज़ों को समझ के हम आपको बताएंगे कि जो इंडिया के अंदर कुछ सेक्टर्स जो आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल रखते हैं इंडिया में ग्रोथ के लिए, उसमें से वुडवर्किंग और प्लम्बिंग दो ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा अवसर्स हैं. हम उन दो सेक्टर्स के बारे में भी आज चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और जो यूरोपियन, जर्मन, यूके, यूएस बेस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं. तो हम अगर स्कूल लेवल से शुरू करें तो इंडिया में कैसा होता है कि बच्चा पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, फिर वो सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे वो +2 यानी 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं और 12वीं क्लास के बाद में वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं. तो बहुत कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स और कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक और मैनेजमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर 12th क्लास के बाद में अवेलेबल रहते हैं. थोड़ा अगर हम यूरोपियन और जर्मन एजुकेशन को सिस्टम को समझें तो वहाँ के सिस्टम में क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल के ख़त्म होने के बाद ही बच्चों के पास में एक ऑप्शन आता है अप्रेंटिसशिप का, जिसको अपन वोकेशनल स्टडीज़ भी बोलते हैं. और ये इसका जो टेन्योर होता है, ड्यूरेशन होता है, 3 से 4 साल का होता है. तो समझिए कि बच्चे ने 8th क्लास के बाद में उसको अप्रेंटिसशिप या वोकेशनल स्टडीज़ में पार्ट लेना ही होता है और ये कंपलसरी है. तो वो उसमें क्या करेगा कि जो मोर देन 50 ट्रेड्स हैं उनमें से किसी एक ट्रेड को वो पिक करेगा और उसके अंदर वो 4 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी करता है. अभी ट्रेड को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वुडवर्किंग एक ट्रेड है, प्लम्बिंग है, पेंटिंग है, वेल्डिंग है, मेटल रिलेटेड है, पेंट्स है. इस तरह से 50 से भी ज़्यादा ट्रेड्स हैं जो पॉपुलर ट्रेड्स हैं, उनके अंदर अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल स्टडीज़ होती हैं. उससे फ़ायदा देखिए क्या होता है, बच्चे ने 8th क्लास पास करने के बाद में जब ये 4 साल स्किल रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन के अंदर वो पढ़ाई करता है तो उसके हाथ में एक हुनर आ जाता है. और वहाँ की पढ़ाई भी कैसे होती है कि जैसे वीक में उनके 5 दिन की पढ़ाई होती है तो एक दिन सेंटर पे जाके थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है, बाकी 4 दिन वो सेंटर से जो एफिलेटेड आसपास में इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हीं इंडस्ट्री में जाके जो इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉय काम करते हैं, जो उनके प्रोडक्शन वाले वर्कर्स काम करते हैं, उन्हीं के साथ वो हैवी मशीन्स पे और जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ट्रेनिंग वो लेते हैं. तो बच्चे के 8वीं क्लास के बाद से ही जब बच्चा इंडस्ट्री लेवल की स्किलिंग सीखने लग जाता है और ये प्रोग्राम को वो 4 साल पूरा देता है, तो 4 साल बाद में जब वो 12th क्लास के बराबर आता है तो उस बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छा स्किल सेट होता है अपनी ट्रेड का. और वो 4 साल इंडस्ट्री के साथ में रुक के अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप भी कर चुका होता है, तो ऐसी इंडस्ट्री उनको जॉब भी ऑफर कर देती है. लेकिन इंडिया में क्या है कि बच्चा पहले फोकस करता है कि मुझे कैसे भी +2 क्लास करना है और +2 क्लास करने तक उसके हाथ में कोई स्किलिंग नहीं रहती. और जब स्किलिंग नहीं रहती है तो उसके बाद वो बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे जो रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं उन्हीं के अंदर एंट्री ले लेता है. बच्चों एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम था, अगर मैं आज से 50-60 साल पहले की बात करूं, तब बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज भी बहुत पॉपुलर थे. रीज़न ये था कि तब इंडिया थोड़ा फ्रीडम के बाद में डेवलप हो रहा था, नए डिपार्टमेंट, नए स्कूल्स, नए यूनिवर्सिटी, नए कॉलेजेस बन रहे थे. उस टाइम पे अगर कोई 10 पास भी होता था तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी. कोई बीए कर लेता था हमारे गांव में तो ऐसा बोला जाता था, अरे इसने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली. उनके लिए जॉब की कमी नहीं रहती थी क्योंकि तब जॉब मार्केट में ज़्यादा थी और पढ़े लिखे लोग कम थे. लेकिन अगर आज हम ये समझेंगे कि 40 साल पहले जितनी वैल्यू बीए की होगी वो आज भी होगी, तो वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तब मार्केट के अंदर डिमांड थी,
बीए डिग्री करने वाले नहीं मिल रहे थे। और आज का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ बीए करते हैं, और ऐसे ही लगभग 40-45 लोग बीएससी करते हैं, 40-45 लाख लोग बीकॉम करते हैं। तो आप देखो कि जो 3-4 डिग्री के नाम आप जानते हो, इनको करने वाले ही लोग 2-3 करोड़ हैं। अब इनमें से जॉब किसकी लगेगी, क्योंकि अभी ये कोर्सेज करने वाले डिपेंडेंट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। या तो इनको आगे फर्दर पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को एमएससी करनी पड़ेगा, किसी को एमबीए करना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए ही खुद को तैयार करना शुरू कर देते हैं। अगर हम डेटा थोड़ा सा देखें तो इनमें से 1% लोग भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि जितनी वैकेंसीज आज से 40-50 साल पहले अगर गवर्नमेंट निकालती थी, अभी डिपार्टमेंट सब बन गए हैं, तो अभी आज उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, क्योंकि पहले हज़ारों में लोग बीए करते थे, अभी करोड़ों में लोग बीए कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन ये समझने के लिए है कि आज इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, या आने वाले हम 20 साल में बात करें तो किस तरह की एजुकेशन करने से बच्चों को कैरियर में फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को बहुत छोटे तरीके से या बहुत बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि एक टाइम था जब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हमें सिर्फ ग्रेजुएट होना पड़ता था या 10वीं पास होना पड़ता था, तब भी कोई हमें पियोन या कुछ छोटे मोटे बाबू की एलडीसी की जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज तो वो नहीं मिल रही है, आज तो उतना गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है। या फिर ये कहें कि आज हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है, हम लगभग 140-150 करोड़ हो गए हैं, और हमारा बोला जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास हैं, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जॉब मांगने वाले बच्चे युवा आज भारत में हैं। और वो आज भी वही कोर्सेज कर रहे हैं जिन कोर्सेज के बेसिस पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आज आप किसी इंडस्ट्री को जाके बोलोगे कि मैंने बीए किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने बीकॉम किया है, तो वो इंडस्ट्री ये कहेगी कि हम कुछ अलग तरह की स्किल सेट देख रहे हैं, आपके बीए करने से मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप कोई सहयोग नहीं दे पाओगे। तो आज का हमारा ये सेशन है कि कैसे इन रेगुलर कोर्सेज से हट के हम स्किल बेस्ड डिग्री या वोकेशनल डिग्री की तरफ जाएं, और जाएं तो क्यों जाएं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा ये समझेंगे। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको दिया कि कैसे यूरोपियन और जर्मन एजुकेशन सिस्टम जो है उनकी इंडस्ट्री को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे मिलता है, ये जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जब 8th के बाद में 4 साल का अप्रेंटिसशिप कर रहा है, तो वो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में रेडी टू इंडस्ट्री पर्सन बन जाता है, यानी हर इंडस्ट्री उसको अपनी ट्रेड में, अपने सेक्टर में जॉब देने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि लगभग 4 साल उसने उस काम को सीखने के लिए दिया है। हम बोलते हैं ना कि ये अंग्रेज़ों के जो बच्चे हैं ये 14 साल 15 साल में घर से अलग रहने लग जाते हैं, माता पिता से अलग रहने लग जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उनके हाथ में हुनर होता है, उनके हाथ में जॉब होती है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हम तब उस एज में यही सोच रहे होते हैं कि अभी मेरे को कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, कैरियर की तरफ तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन डिग्री की वैल्यू नहीं है या इंपॉर्टेंस नहीं है, आज भी बीए बीएससी बीकॉम की उतनी ही वैल्यू है, लेकिन आप देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एक बड़े कंपटीशन में जब आप वही डिग्री लेके उस भीड़ में खड़े रहते हो तो आपके सक्सेस होने के या आपके कैरियर में आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में, कुछ ऐसे डिग्रीज के बारे में जो मार्केट में बहुत कम ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, लेकिन जितनी कम इसकी अवेलेबिलिटी है उतना ही मल्टीप्लाई में उतनी ही ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब जो मैंने अभी आपको एक सिस्टम समझाया कि यूरोप में और बाहर जर्मनी के अंदर 12th क्लास तक बच्चा अप्रेंटिसशिप में कुछ प्रोग्राम, कुछ ट्रेनिंग सीख लेता है, कुछ स्किलिंग ले लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उस बच्चे को इंडस्ट्री में जाके जॉब ही करना पड़ेगा। वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने किसी अप्रेंटिसशिप में 4 साल दिया है, उसके बाद आपको ग्रेजुएट होना है, आपको बैचलर डिग्री करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कन्वेंशनल एजुकेशन में जाके कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 4 साल कारपेंटरी सीखा और फिर मुझे जाके बीए करना पड़ेगा, क्योंकि कारपेंटरी का और बीए का तो कोई तालमेल नहीं है, वेल्डिंग का और बीएससी का तो कोई तालमेल नहीं है। तो वहाँ पे हर कंट्री के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्किल बेस्ड डिग्री प्रोग्राम्स चलाते हैं। अगर आपने वुडवर्किंग में, प्लम्बिंग में, वेल्डिंग में, पेंट कोटिंग के अंदर अप्रेंटिसशिप किया है, तो आपको आगे वहाँ की यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री करने के चांसेस मिलेंगे। वहाँ पे ये कोर्सेज बहुत लंबे अरसे से अवेलेबल हैं, और वहाँ से ये कोर्सेज करने के बाद में जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, फॉर एग्जांपल किसी ने कारपेंटरी के अंदर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लिया वुडवर्किंग के अंदर, तो वो एक वुडवर्किंग इंडस्ट्री में जाके एक वाइट कॉलर जॉब करेगा।
बच्चों वाइट कॉलर जॉब उसको बोलते हैं जब आप एक मैनेजर, एक डिज़ाइनर, एक प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह, एक सेल्स मैनेजर की तरह इंडस्ट्री में काम करते हैं। और दूसरा वर्ड मैं बार बार यूज़ करूँगा, एक ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब उसको बोलते हैं जो मशीन फ्लोर पे ऑपरेशन लेवल तक एज अ मशीन ऑपरेटर, एज अ हेल्पर, एज अ मशीन मेंटेनेंस वाले लोग करते हैं। तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर में आपको डिफरेंस समझ में आए, इसलिए मैंने आपको अभी ब्रीफ किया। तो ये आप देखिए कि जितने बाहर की कंट्रीज़ हैं, ये बाहर की कंट्रीज़ बच्चों को 12th तक अप्रेंटिसशिप करवा रही हैं। उसके बाद उनको मौका दे रही है कि आप अपनी ही ट्रेड्स के अंदर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी कैसे हो सकते हो, ताकि वही बच्चे आगे अपने स्किल्स के अंदर, अपने ट्रेड्स के अंदर ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी जैसे प्रोग्राम करके अपनी कंट्रीज़ की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वाइट कॉलर पोजीशन पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इन 7 साल में मेरे को यूरोप, यूके, यूएस काफ़ी कंट्रीज़ विजिट करने का मौका मिला हुआ। तो हमने जो वहाँ के एक्सपर्ट से बात की, वहाँ के हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विजिट किए, तो हमने यही चीज़ फाइंड आउट की कि वहाँ पे एक स्किल एजुकेशन का सिस्टम बहुत छोटे क्लास लेवल से लेके और मास्टर पीएचडी प्रोग्राम तक एक फ्लो में बना हुआ है। हमें मेक इन इंडिया बनाना है, हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत का जो सपना है वो मेक इन इंडिया के बिना पूरा हो नहीं सकता। और मेक इन इंडिया तब पूरा होगा जब हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया में होगी। ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ होंगी बल्कि इंडस्ट्री का एक पूरा हब होगा। और देखिए कि किसी भी देश में किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की इंडस्ट्री तब लग पाती है जब उस इंडस्ट्री में उस ट्रेड से रिलेटेड, उस स्किल से रिलेटेड स्किल मैन पावर अवेलेबल होता है। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं 1999 या 2000 के आसपास, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे सेक्टर थे इंडिया में, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़। तब 1998-99 में भी इतनी कोई ज़्यादा ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं थे, लेकिन इंडिया में इन सेक्टर से रिलेटेड एक चीज़ अवेलेबल थी, वो थी इनकी एजुकेशन। आप देखोगे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज चलते थे और बच्चे ये डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कोर्सेज करके इन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते थे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज से 20-25 साल पहले भी जिन सेक्टर को इंडिया में स्किल्ड मैन पावर मिला, वो सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किए। और आप देखोगे कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को 2000 से के बजाय अगर आज कंपेयर करोगे तो आज इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत ऊपर है। 98-99 में अपने को रोड पे 2-3 से ज़्यादा ब्रांड की गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। आज अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो तो आप बड़ी सिटी में आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको आधे घंटे में 25 ब्रांड दिख जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मैं गाड़ी लूँ। ये बच्चों क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उन सब ने इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता कि इंडिया में हमारे सेक्टर से रिलेटेड स्किल्ड मैन पावर है, तो वहाँ पे हमें अच्छा मार्केट मिलेगा। और अच्छा मार्केट मैं क्यों बोलता हूँ? हमारी पॉपुलेशन इतनी है 140-150 करोड़ की, कि आप पूरा यूरोप को काउंट करो ना, जिसमें लगभग 60-70 कंट्रीज़ होंगी, उनकी पॉपुलेशन 75 करोड़ है, यानी इंडिया से आधी है। तो जो काम हमें पूरे यूरोप में नहीं मिल पाता वो खाली इंडिया में उससे डबल पॉपुलेशन है। और इंडिया में के मार्केट में ऐसे क्लाइंट हैं जो कम खर्चे से लेके और बड़े से बड़ा खर्चा भी करना जानते हैं। यहाँ पे मारुति भी चलती है तो यहाँ पे BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ी भी चलती है। यही चीज़ें हैं जो बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। मैं वापस आ जाता हूँ स्किलिंग वाले पॉइंट पे। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस सेक्टर के लिए स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल रहती है, उस सेक्टर को इंडिया में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड हैं। एक है आपका वुड वर्किंग, या आप इसको फर्नीचर सेक्टर, कारपेंटर सेक्टर की तरह भी समझ सकते हैं, और दूसरा है प्लम्बिंग सेक्टर। ये वुड वर्किंग और प्लम्बिंग दोनों ही सेक्टर जो हैं वो कंस्ट्रक्शनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि पिछले 10-15 साल में इंडिया में कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हुआ है, और जितनी तेज़ी से हुआ है, अगर हमें इंडिया को विकसित भारत बनाना है, उससे कई गुना तेज़ी से आने वाले 25 सालों में ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट हमें पूरे करने पड़ेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल ऑफिसेज बन रहे हों, बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हों, बड़े फ्लैट्स, रेजिडेंस बन रहे हों, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बिना वुड वर्किंग और प्लम्बिंग स्किल्स के पूरे नहीं हो सकते।
आप भले मुख्यमंत्री विकास योजना में जो 1 BHK वाला जो घर मिलता है ना, आप वो भले घर लो, या जैसे अंबानी साहब ने अपना बहुत बड़ा एंटेलिया का बंगला बनाया, दोनों के अंदर वुडवर्कर और प्लम्बर को तो जाना ही पड़ा होगा, तभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होगा। तो आप इन दोनों सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, आप इस बात से समझो कि प्रोजेक्ट भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब तक कारपेंटर और प्लम्बर वहाँ पे नहीं जाएंगे तब तक वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे। थोड़ा सा मैंने सर्वे किया, रिसर्च किया, तो मुझे ये पता लगा कि लगभग इंडिया के अंदर जो वुडवर्किंग का मार्केट था, लास्ट 2023 तक की मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, वो लगभग 1800 बिलियन था, और यही प्लम्बिंग का 600 बिलियन के आसपास था। तो 1800 बिलियन का मतलब बच्चे हो गए, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। तो आप 1800 इंटू 100 करोड़ करो, आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा मार्केट है। और दूसरी खूबी इस मार्केट की क्या है कि जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आने वाले 15 साल में ये सेक्टर 13 से 14% CAGR से ग्रो करने वाला है। मैं CAGR के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कोई भी सेक्टर हर साल कितनी ग्रोथ से वृद्धि करेगा, ग्रो करेगा। अभी मैं जो आपको ये 13 से 14% का डेटा दे रहा हूँ ना, और एक मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, उस समय में इतना ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी नहीं दिखाया गया था। तो आप समझ जाओ कि जितने 20 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ग्रो हुई, उससे कहीं ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर जो है, ये वुडवर्किंग और प्लम्बिंग वाला जो सेक्टर है, ये आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि बाहर की इंडस्ट्रीज़, जो आप इंटरनेशनल फर्नीचर ब्रांड देखते हो, इटली से, यूरोप से, जर्मनी से, टर्किश फर्नीचर जितने आप देखते हो, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज आज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। हरमन मिलर, आइकिया, हैफेले जैसे आपने फर्नीचर और फर्नीचर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं, या अपने सप्लाई चेन को बढ़ावा दे रही हैं, या अपने वेयर हाउस खोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 150 करोड़ पॉपुलेशन का मार्केट है, इस मार्केट से बड़ा मार्केट इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे हर किस्म की बाइंग करने का पोटेंशियल रखने वाले कस्टमर हैं। लेकिन अभी भी देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ये फेस अभी भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे, वो ये है कि इन इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है। इंडिया में इन इंडस्ट्रीज़ को स्किलिंग बेस्ड ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब देने के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, युवा ही नहीं मिल रहे हैं। अब वो देखो बच्चों, कोई कंपनी अमेरिका से आके यहाँ पे इंडस्ट्री तो लगा सकती है। अब एक आप ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो उसमें 3000, 4000, 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 5000 लोग वो अमेरिका से लेके आए, है ना। कुछ मैनेजमेंट के वो लोग वहाँ से लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए जो मैक्सिमम स्टाफ चाहिएगा, वो हमें लोकल स्टेट से, लोकल कंट्री से लेना होता है। इन दोनों ही सेक्टर में आज भी लगभग 88% इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो इंडस्ट्री काम तो कर रही है, आपकी जेब से पैसा तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। किसी का GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी कोई कंपनी की तरह काम नहीं करता। जैसे आज मैं ही अपने घर में किसी कारपेंटर को बुलाता हूँ, वो मेरे यहाँ पे वार्डरोब का, किचन का काम करके जाता है, और मेरी जेब से 30,000 40,000 रुपया वो लेके चला जाता है। तो वो जो 40,000 रुपया गया, वो उसकी पॉकेट में गया, मेरी पॉकेट से निकला, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में नहीं है। तो इस सेक्टर को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आज देखो कि जो सेक्टर आने वाले 25 साल में, 15 साल में 13 से 14% CAGR की तरफ से बढ़ने वाला है, और उसमें अभी भी अगर 88% इंडस्ट्री जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 88% इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ये धीरे धीरे जैसे इनको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, ये सेक्टर सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ऑर्गेनाइज्ड होने में इतना टाइम लगेगा कि देखो, इस सेक्टर के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। आज जो बाहर से इंटरनेशनल ब्रांड्स आके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर और प्लम्बिंग वाले, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अभी तो सिर्फ 12% मार्केट ही ऑर्गेनाइज्ड है, 88% में तो कंपटीशन है ही नहीं, है ना। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे इन दो सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब हमने ये बाहर के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा समझा, यूरोप में क्या चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, तो यहाँ पे हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री और जो प्लम्बिंग इंडस्ट्रीज़ थी,
उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग्स की, हमने उनका समझा कि भाई आपके यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे कंट्री के अंदर ये सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज उन्होंने बताया वो बताया कि सर हमारे पास में स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलते हमें। हम किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें आपके यहाँ से स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो इस तरह के कोई कोर्सेज चलते ही नहीं हैं। तो एक आईटीआई जैसे हमारा चलता है, 8th के बाद 10th के बाद बच्चा आईटीआई करता है, लेकिन आईटीआई का सिलेबस भी उतना अपडेटेड आज की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस के अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सिलेबस जितना अपग्रेड नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा गुना आज इंडस्ट्री अपग्रेड हो गई है। तो इंडस्ट्री हमेशा ये देखती है कि आज मेरे प्रोडक्शन फ्लोर पे अगर सीएनसी मशीन्स रखी हैं फर्नीचर मेकिंग के लिए या प्लम्बिंग के पाइप्स बनाने के लिए, लेकिन जो बच्चा आ रहा है एजुकेट होके उसको अगर सिर्फ हैंड टूल्स आता है, पावर टूल्स आता है, तो उससे मैं अपनी इंडस्ट्री में क्या काम लूँगा। तो इंडस्ट्री ने सबसे पहला चैलेंज हमें बताया कि स्किल्ड मैन पावर इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपनी 1 यूनिट से इसको 10 यूनिट तक लेके जाना चाह रहे हैं। हर स्टेट में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो डालना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लोकली स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं होती, ना तो ब्लू कॉलर में ना वाइट कॉलर में। दूसरा क्या होता है कि इस सेक्टर के अंदर जो करंट एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं उनके अंदर भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि हमारे ही सेक्टर में किस तरह का एडवांसमेंट अभी पिछले 4 साल 5 साल में आ गया है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में एक 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के कारपेंटर हैं, तो हम समझते हैं कि भाई ये 60 साल से वुडवर्किंग या कारपेंटरी का काम कर रहा है तो ये एक्सपर्ट होंगे। लेकिन आप उनसे पूछो मार्केट में 10 तरह के नए मटेरियल्स आ गए आज, तो उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है जहाँ पे वो मटेरियल काम में लिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं, वुडवर्किंग, प्लम्बिंग, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से ज़्यादातर जो काम है वो हैंड टूल्स, पावर टूल्स या मैनुअली किया जाता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ आप देखोगे जहाँ पे अप्रेंटिसशिप हो रहे हैं, जहाँ ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो सीएनसी मशीन और ऑटोमेटिक मशीन्स पे कर रही हैं। और उनको चैलेंज क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ के मार्केट के अंदर वो ऑपरेटर, वो स्किल्ड मशीन ऑपरेटर अवेलेबल है, तो ईजिली उनको वो मैन पावर मिल जाता है। यहाँ की इंडस्ट्री के बाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि उनके एम्प्लॉय को अपस्किलिंग या हायर एजुकेशन का मौका ही नहीं मिलता। अगर आपने आईटीआई करके 8वीं क्लास के बाद में वुडवर्किंग में, प्लम्बिंग में आईटीआई करके आप किसी इंडस्ट्री में चले भी गए और उस इंडस्ट्री में आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपको शुरू में एज अ मशीन असिस्टेंट ऑपरेटर लगाएंगे, धीरे धीरे आपको ऑपरेटर बना देंगे। 10-15 साल आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसा बना के जॉब में रखेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो आपके मन में भी इच्छा आएगी कि यार मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था या जब मैंने आईटीआई किया, तब भी मैंने अपने स्कूल को, अपनी क्लास को, अपने आईटीआई को मैंने टॉप किया। तो जब आप टॉप करते हो मतलब आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसके बेस पे आपको इंडस्ट्री में जॉब मिली, इंडस्ट्री आपको प्रमोट कर रही है, मतलब आप एक ब्रिलियंट एम्प्लॉय हो। लेकिन फिर 15 साल बाद में जब आपके मन में ये आया कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक मैनेजर, डिज़ाइनर या प्रोडक्शन इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, तब आपको ये बताया जाता है कि आपने सिर्फ स्कूलिंग के बाद में एक छोटा सा कोर्स किया हुआ है आईटीआई, जिसके बेसिस पे हम ये इतनी वाइट कॉलर जॉब प्रोफाइल आपको नहीं दे सकते। तो आप पूछते हैं कि क्या करूं मैं, तो आपको बताया जाता है आप कम से कम ग्रेजुएट तो हों। अब एक बच्चा जिसने वुडवर्किंग या प्लम्बिंग में आईटीआई किया और 15 साल तक एक इंडस्ट्री में रुक के 15 साल तक वुडवर्किंग या प्लम्बिंग रिलेटेड जॉब कर रहा है, वो बच्चा अब वापस बीए करने जाएगा और वो पढ़ेगा कि हिस्ट्री में बाबर कब आए, हुमायूं कब आए। बताओ क्या तो उसको समझ में आएगा और वो रीडिंग क्या उस इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव होगी। तो जैसा बाहर की कंट्रीज़ में सेम ट्रेड के अंदर हायर एजुकेशन के प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से इन सेक्टर ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। और एक जो बड़ा चैलेंज जो उनसे डिस्कशन करके हमें समझ में आया कि कोई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कुछ रेपुटेड इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं थे जो इनको वुडवर्किंग में या प्लम्बिंग में सर्टिफिकेशन, डिग्री या डिप्लोमाज के सर्टिफिकेट दे पाएँ। तो वो भी उनके साथ में एक बड़ा चैलेंज था। तो ये सब चैलेंज को समझने के बाद में जो हमें रिसर्च गैप्स मिले,
जो जो कमियां एजुकेशन सिस्टम में जो इंडस्ट्रीज़ ने हमें बताई, तो हमने ये डिसाइड किया, पीडीलाइट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आईटीआई में तो हम पिछले 10 साल से सपोर्ट कर ही रहे हैं। गुजरात में ही 200 से ज़्यादा आईटीआई हैं जिनके जो 1 साल का जो प्रोग्राम चलता है आईटीआई का, या 2 साल का इलेक्ट्रिशियन के जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम सपोर्ट करते हैं। उसमें हम ट्रेनर्स, रॉ मटेरियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर टूल्स, एड ऑन, ओजेटी, इंडस्ट्री कनेक्शन, इन सब के अंदर हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब हमने इन बड़ी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से बात की तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ आईटीआई से स्किलिंग में काम नहीं चलेगा। अब वो मौका है जब इंडिया के अंदर आईटीआई के बाद, स्कूल के बाद भी कुछ हायर डिग्री स्किलिंग प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें बच्चा ग्रेजुएट हो तो अपनी ट्रेड में स्किलिंग एजुकेशन के बेस पे हो। एक इंडस्ट्री के साथ बैठ के कॉमन कंक्लूजन निकाला गया कि अभी हम वुडवर्किंग और प्लम्बिंग में 12th पास आउट बच्चों के लिए, आईटीआई बच्चों के लिए, 10th पास आउट बच्चों के लिए कुछ हायर कोर्सेज लेके आएंगे। और ये हायर कोर्सेज हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ही डेवलप किए। इंडस्ट्री वालों ने हमें बताया कि भाई हमारा प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, जो प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, उनका किस तरह का जॉब रोल रहता है, उनमें क्या क्या स्किलिंग रहना चाहिए, डिज़ाइन टीम में क्या स्किलिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम में क्या स्किलिंग होना चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस टीम है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो टीम है उसमें किस किस लेवल पे क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए। उसके बेसिस पे हमने एक मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी आई है, ये सारे प्रोग्राम उस एनईपी प्रोग्राम के तहत बने। और हमने 12th क्लास के बाद में 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री और 4 साल का डिग्री विद ऑनर्स प्रोग्राम हमने ऑफर्ड किए। और इन प्रोग्राम्स को हमने गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है, कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है, उनके साथ में हमने ये प्रोग्राम एफिलेटेड करवाए। तो ये जितना इंडस्ट्री सर्वे था, जितना रिसर्च था, मशीन प्रिक्योरमेंट, सेंटर का डेवलपमेंट, सेंटर के लिए टीम, ट्रेनर्स, ये सब पीडीलाइट के सपोर्ट से हुआ। लेकिन जब हमने इंडस्ट्री में बात किया, जब हमने पेरेंट्स से बात किया, तो ज़्यादातर पेरेंट्स का सुझाव ये था कि हमारे बच्चों को जो डिग्री मिले वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट का ठप्पा लगने के बाद में वो जो डिग्री है वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल हो, बाहर भी उसकी उतनी ही वैल्यू हो। तो ये चीज़ समझते हुए हमने हमारे इस सेंटर को कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम एफिलेटेड करवाए, ताकि हमारे सेंटर पे जो भी बच्चा आए उसको ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास जो इंडस्ट्रीज़ रहती है उस फॉर्म में उसको ट्रेनिंग मिले, और उस ट्रेनिंग के बाद में जो उसके हाथ में सर्टिफिकेट आए, जो डिग्री आए, वो डिप्लोमा आए, वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी के आए। अच्छा, इस डिग्री का दूसरा फ़ायदा क्या था? दूसरा फ़ायदा इस डिग्री का ये था कि आपने जैसे वुडवर्किंग, फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिग्री किया, तो डिग्री करने के बाद में अगर आपको फर्नीचर सेक्टर में नहीं जाना है और आपका ये रहता है कि नहीं मुझे तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, मुझे तो रेलवे का एग्ज़ाम देना है, मुझे तो बैंक का एग्ज़ाम देना है, तो आप इस डिग्री के बेसिस पे उस एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हो। क्योंकि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ से आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हो, वैसे ही ये जो डिग्री है ये भी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट मानी जाती है। तो इसके बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे, फर्नीचर या प्लम्बिंग के। आप अपना खुद का छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो इस डिग्री का करने के बाद में। और जैसे बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, अगर किसी बच्चे को पीएसयू में, यूपीएससी में जाना है तो उसके लिए भी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये ओवरऑल जो हमने प्रोग्राम शुरू किए, ये इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से, जो इंडियन पेरेंट्स की एक रिक्वायरमेंट थी कि बच्चे के जब हाथ में जो डिग्री आए वो गवर्नमेंट की आए। कुछ पेरेंट्स से जब हमने बात की तो हमारे सामने ये आया कि जैसे बच्चा कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स फिनेंशियली थोड़े वीक होंगे, उनके पास में थोड़ा पैसे की व्यवस्था कम होगी, इसलिए बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। वरना पैसे अगर अच्छे होते, इनकम अच्छी होती है तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। तो प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें एश्योरिटी है कि वहाँ के प्रोग्राम अच्छे हैं, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई होगी और वहाँ से बच्चा अच्छा कुछ सीख के निकलेगा। लेकिन वही बच्चा जब 12th पास कर लेता है तो वही पेरेंट्स जो पहले बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे थे, अब चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, आईआईटी मिल जाए, एम्स मिल जाए,
है ना, IIM में एडमिशन हो जाए। तो हायर एजुकेशन के लिए सबको गवर्नमेंट का डिग्री चाहिए, प्राइवेट किसी को नहीं चाहिए। तो इस इंपॉर्टेंस को हमने समझा कि अगर हम भी स्किलिंग के अंदर हायर एजुकेशंस में डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट उनकी तरफ से आना चाहिए। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें जिनके साथ ये प्रोग्राम हम रन करने वाले हैं, तो उसमें देखिए टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं गोदरेज इंटीरियो, ज्वारी, विप्रो, डूरियन, आइकिया, उषा लेक्सेस, नीलकमल, और ना जाने इतनी कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी इंडिया में लगभग 6000 के आसपास ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ के पास में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे वो जाके डायरेक्ट प्लेसमेंट कर पाएँ, क्योंकि इस सेंटर से पहले कोई इस तरह की डिग्री प्रोग्राम वुड वर्किंग और प्लम्बिंग में कोई ऑफर कर ही नहीं रहे थे। ऐसे ही पीडीलाइट में आप देखोगे तो पीडीलाइट खुद प्लम्बिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, एडहेसिव सीलेंट्स बनाते हैं, आशीर्वाद पाइप्स है, कोठारी है, जैन इरिगेशन, एस्ट्रल, इस तरह की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पीडीलाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड है जिसके अंदर प्लम्बर्स और सुपरवाइजर और इंजीनियर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती है। अगर हम थोड़ा सा जॉब रोल्स के ऊपर नज़र डालें तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि दो तरह के जॉब रोल्स रहते हैं, एक ब्लू कॉलर और एक वाइट कॉलर। तो स्क्रीन पे जैसे आपको येलो कलर के अंदर कारपेंटर, मशीन असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, सीनियर कारपेंटर, असेंबलर, पॉलिशर, सोफा मेकर, फ्लोर सुपरवाइज़र, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ये सब जॉब रोल दिख रहे हैं। ये सब जॉब रोल आते हैं ब्लू कॉलर की कैटेगरी में। तो ये ब्लू कॉलर की कैटेगरी के लिए जॉब लेने के लिए हमारे साथ में कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करने होते हैं। लेकिन किसी बच्चे का ये है कि नहीं, मुझे वाइट कॉलर कैटेगरी में ही जाना है, मुझे तो अपना कैरियर एज अ इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, इंटीरियर इंजीनियर, इन्वेंट्री स्टोर मैनेजर या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की तरह शुरू करना है, तो उनके लिए फर्दर डिप्लोमा और डिग्री के भी प्रोग्राम हैं। तो ये जैसे बाकी आप सेक्टर में देखते हो ऑटोमोबाइल, सर्विस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में कि इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे जॉब रोल्स रहते हैं, वैसे ही आज प्लम्बिंग और फर्नीचर सेक्टर में ये जॉब रोल्स हैं। और इन्हीं जॉब रोल्स के बेसिस पे हमने वो प्रोग्राम डिफ़ाइन किए हैं कि पर्टिकुलर कितना टाइम का आप ट्रेनिंग लेके आप कौन से स्किल सेट, कौन से जॉब रोल के लिए रेडी हो सकते हो। ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 के अंदर हमारा एक MOU साइन हुआ KSU के साथ में, कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में। और ये जो MOU साइन हुआ, इस MOU के जो मुख्य उद्देश्य थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला तो वही था कि इंडस्ट्री का जो एक गैप हमें फाइंड आउट हुए उनके सर्वे के बाद में कि हमारे सेक्टर में वुड वर्किंग और प्लम्बिंग के अंदर आप डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे प्रोग्राम चलाओ ताकि हमें भी एक वाइट कॉलर स्किल्ड मैन पावर मिल पाए। दूसरा उन इंडस्ट्री का ये था कि हमें साथ के साथ में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी रिलेटेड कोर्सेज शुरू करने चाहिए ताकि जो ब्लू कॉलर रिलेटेड जॉब रोल्स हैं, मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, पेंट असेंबलर, प्लम्बर, सीनियर प्लम्बर के जैसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी हमने इसमें इन्वॉल्व किए। सेकंड, जैसे हमने बताया कि पीडीलाइट जो है लास्ट 10 साल से ITIs को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक बड़ा गैप हमने देखा कि वुड वर्किंग और प्लम्बिंग जैसी ट्रेड्स के अंदर जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो ट्रेनर हैं, उनका TOT का मौका नहीं मिलता, जिसको ट्रेन ऑफ द ट्रेनिंग बोलते हैं। भी जो आपके टीचर हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, उनको उनकी भी रेगुलर अपस्किलिंग होना चाहिए, रीस्किलिंग होना चाहिए। तो कहीं कुछ उनको ऐसा चांस नहीं मिल रहा था कि वो जो एडवांस मॉड्यूल्स हैं, जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एडवांस मशीनरीज़ हैं, उनके ऊपर ट्रेनिंग ले पाए। तो हमने ये जो सेंटर डेवलप किया है, इसमें हम TOTs भी करते हैं उन ITIs के ट्रेनर्स के लिए। सेंटर के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट स्किल्स हैं, लेटेस्ट प्रोग्राम हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो इंडस्ट्री को हमने ये प्रॉमिस किया है, क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं के साथ हम रन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम चला रहे हैं, कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की चेंज होगी, हम अपने प्रोग्राम में उसी के हिसाब से चेंज कर देंगे। हम 2 साल, 5 साल, 10 साल वेट नहीं करने वाले हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसी हमारी ट्रेनिंग रहेगी, ताकि उन ट्रेंड बच्चों को आपको जॉब देने में कोई हेजिटेशन ना हो। ये अभी आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर लेआउट है। इस सेंटर में वुड वर्किंग वर्कशॉप्स हैं, जिसमें स्टेशनरी मशीन, एडवांस CNC मशीन्स लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छा एडवांस प्लम्बिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास में लैब डेवलप हमने किया हुआ है। अभी जितनी मशीन्स आप देख रहे हो, ये मशीन्स एक्चुअल में वही मशीन हैं जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर प्रोडक्शन के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, क्वालिटी चेक के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो जब बच्चा एक्चुअल मशीन के ऊपर ट्रेनिंग करता है तो वो बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो ही जाता है। और वही चीज़ों की ट्रेनिंग कर रहा है जिनके लिए इंडस्ट्री ने हमें रिकमेंडेशन दिए हैं कि किन टॉपिक्स पे कितने घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। ये अभी आप देख रहे हैं, ये मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट है। मैं तो चाहूँगा कि मैं अभी आपके साथ में सेशन के एंड में एड्रेस वगैरह शेयर करूँगा सेंटर का,
कि मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ पे आके देखें कि कैसे एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जा सकता है और कैसे एडवांस स्किलिंग के कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी मशीन्स आप वहाँ पे लाइव देख सकते हैं। बच्चों के लिए जो +2 पास आउट स्टूडेंट हैं, 10th पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम एक स्मॉल वर्कशॉप्स भी प्लान कर रहे हैं मई मंथ से। उनकी डेट भी आपके साथ शेयर करेंगे 3-3 दिन का। तो उसमें आके आप अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके उन मशीन्स के ऊपर, हालांकि हमारी टीम रहेगी वो बिल्कुल आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का आपका ध्यान रखेगी, तो उस तरह के वर्कशॉप में भी आप पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। वहाँ आप आएंगे तो आपको इस सेक्टर के बारे में जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। ये हमारी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमने आपको बताया कि 12th पास करने के बाद में अगर बच्चा हमारे साथ में 1 साल जुड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, 2 साल में डिप्लोमा मिलता है फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, 3 साल में फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में आपको बीएससी का डिग्री मिलता है। और कोई बच्चा अगर 4th ईयर भी हमारे साथ रुकता है तो उसको बीएससी डिग्री मिलेगा फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग विद ऑनर्स। तो ये जो 4th ईयर वाला प्रोग्राम है ये पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे है। जैसे बाकी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हो कि एक R&D डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही इंडिया में फर्नीचर सेक्टर में अभी R&D डिपार्टमेंट बनने लग गए हैं, लेकिन उनके पास में अभी भी रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ाई किए हुए बच्चे, यूथ नहीं है। तो जो बच्चे डिग्री करते हैं उनके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इन इंडस्ट्रीज़ में जाके R&D डिपार्टमेंट में सर्व करने का। और ये जो हमने डिग्री प्रोग्राम चलाए हैं इसमें भी आप फाइनल ईयर में अलग अलग स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हो। अगर आपका शौक डिज़ाइनिंग में है तो आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग को एज अ स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्वालिटी से रिलेटेड ले सकते हो। सैंपल डेवलपमेंट, वुड एनालिसिस, सेल्स में जाना चाहते हैं तो सेल्स से रिलेटेड आपके पास में स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो इस तरह से टोटल 7 स्पेशलाइजेशन है जो बड़े फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ ने हमें सजेस्ट किए कि इस तरह के उनके डिपार्टमेंट चलते हैं और उन डिपार्टमेंट में वाइट कॉलर के लिए जो जॉब रोल्स निकलते हैं उनको क्या क्या ट्रेनिंग आपको देना है, तो उसी बेसिस पे हमने ये सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप देखो कि वुड वर्किंग में हमारे पास में जो मॉडल फर्नीचर बनता है जिनको अपन वुडन पैनल प्रोसेसिंग मशीन्स बोलते हैं, उससे रिलेटेड लेवल 4 का, अच्छा सारे प्रोग्राम हमारे NSQF लेवल से अलाइन है। तो लेवल 4 का प्रोग्राम है, ये 3 वीक का आपका प्रोग्राम है। सॉलिड वुड फर्नीचर्स रिलेटेड आपको मशीन ऑपरेशन सीखने हैं, उसका एक अलग प्रोग्राम है। CNC राउटिंग, कार्विंग मशीन्स आपको सीखनी है तो उसका हमारे पास 12 दिन का, लगभग 2 वीक का ये प्रोग्राम है। ऐसे ही CNC लेथ मशीन ऑपरेटर के प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्रोग्राम है। तो इसमें ट्रेनिंग आपको पीडीलाइट के स्किल सेंटर पे मिलेगी, लेकिन इनका सर्टिफिकेशन जो होगा, जो डिग्री आपको मिलने वाली है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात KSU से मिलने वाली है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हमने प्लम्बिंग के लिए चलाए हुए हैं जिसमें एडवांस प्लम्बिंग हम सिखाते हैं। मॉडर्न प्लम्बिंग का 2 वीक का हमारे पास प्रोग्राम है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लम्बिंग का 3 मंथ्स का हमारे पास में प्रोग्राम है। और एक बहुत अच्छा 1 ईयर का प्रोग्राम बना हुआ है प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन एंड पाइपिंग सिस्टम। ये 10th के बाद में बच्चा 1 साल का ये प्रोग्राम भी कर सकता है। ये जितने प्रोग्राम्स हैं इनकी मैं डिटेल आपको सेशन के अंत में जो स्लाइड्स रहेगी उसके अंदर भी हम आपको हाईलाइट करेंगे, जिसमें आपको डिटेल में मिलेगा कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना ड्यूरेशन है, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए USPs क्या है या फिर इन प्रोग्राम की महत्वता क्या है। तो देखो, जितने भी प्रोग्राम है उसमें हमारा 80-90% जो टाइम रहता है, ट्रेनिंग रहती है, वो प्रैक्टिकल रहती है। सिर्फ थ्योरी जो है वो आपको 15-20% मिलेगी। यानी यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है ये कुछ अलग तरह का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चा आएगा और दिन के 6-7 घंटे क्लास में बैठ के शाम को घर चला जाएगा। यहाँ पे क्लास जो होगी मुश्किल से एक दिन में 1 घंटे होगी, बाकी 6-7 घंटे आपको हैवी मशीन्स पे काम ही करना है, उसी पे आपको ट्रेनिंग लेनी है। आप डिज़ाइन की ट्रेनिंग लोगे, आप मटेरियल सिलेक्शन की ट्रेनिंग लोगे, प्रोडक्शन की लोगे, क्वालिटी कंट्रोल्स की लोगे, हाई एंड प्लम्बिंग कैसे करते हैं, प्लम्बिंग के अंदर जो फॉल्ट फाइंडिंग है उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जितनी भी ट्रेनिंग है ये हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं। यानी जो हमारी टीम है वो टीम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड है सारी, और जितने हमारे साथ में इंडस्ट्रीज़ के पार्टनर्स जुड़े हुए हैं उन इंडस्ट्रीज़ से भी हर डिपार्टमेंट से अलग अलग एक्सपर्ट्स आके अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग और थ्योरी डिलीवर करते हैं। दूसरे जो खास बात है इन प्रोग्राम्स की, वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम है, तो इसमें सेमेस्टर के साथ साथ इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम है, जैसे शुरू में मैंने बताया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी से रिलेटेड है। डोमेन स्किल और प्लेटफॉर्म स्किल, दोनों स्किल्स हम सिखाते हुए इस प्रोग्राम को चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th के बाद बच्चा अगर आता है
और वो फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिग्री में एडमिशन लेता है, तो उस बच्चे को हम शुरू में डोमेन स्किल सिखाएंगे, मतलब ब्लू कॉलर जॉब के लिए जो चाहिए, हैंड स्किल्स, पावर टूल्स, मशीन ऑपरेशंस, वो सब चीज़ सिखाएंगे। और जब डोमेन स्किल बच्चा सीख जाता है तो फिर वो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में प्लेटफॉर्म स्किल्स सीखता है। प्लेटफॉर्म स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो प्रोफेशनल लोगों को दी जाती है, जैसे जो इंजीनियरिंग के कोर्स करने जाते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, हायर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो करते हैं, तो उनमें जो स्किल्स होती हैं कि कैसे आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है, कैसे आपको कोटेशंस बनाने हैं, कैसे आपको पीपीटी रेडी करना है, कैसे आपको पूरे दिन का प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के लिए आपको एक शीट प्रिपेयर करनी है, और कैसे उस शीट के हिसाब से मैन पावर जो आपके वर्क फोर्स हैं उनको जॉब असाइन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, ताकि आप वाइट कॉलर जॉब करने जाओ तो आपको डोमेन स्किल्स का भी पता हो, यानी कि जो आपका जूनियर है, जो आपका मशीन हेल्पर है, जो मशीन ऑपरेटर है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तभी तो आप पता कर पाएंगे जब आपने खुद उस चीज़ की ट्रेनिंग ली हो। और साथ में जो आपको जॉब रोल मिलने वाला है, वो आपको कोई कारपेंटर या प्लम्बर बन के उन इंडस्ट्री में नहीं जाना है। आप जाएंगे जब डिग्री करने के बाद में, तो वाइट कॉलर जॉब आपको मिलने वाली है। आप एज अ इंजीनियर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ मैनेजर उसके अंदर जाने वाले हो। सारे के सारे जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं आपको इन प्रोग्राम्स के बाद में, वो कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उनसे मिलने वाले हैं। और सारे प्रोग्राम जो है वो NSQF अलाइन है। NSQF अलाइन मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम, जो MSD और NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो डिज़ाइन करते हैं, उसके हिसाब से प्रोग्राम है। तो इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा आप ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि इंडिया के बाहर भी आप कनाडा, US, UK जैसी कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे आज के टाइम में कारपेंटर्स और प्लम्बर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ भी ये सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, वहाँ भी ये कंसिडर किए जाएंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के कोर्स किए हुए बच्चों की बढ़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री को अपना इंडस्ट्री एक्सपेंशन के लिए, यूनिट एक्सपेंशन के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल्ड मैन पावर की है। और स्किल्ड मैन पावर इसी तरह की ट्रेनिंग कोर्सेज करने के बाद में डेवलप की जा सकती है। किसी बच्चे को ये लगता है कि भाई डिग्री करने के बाद में मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, तो इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ डोमेन स्किल्स और प्लेटफॉर्म स्किल्स सिखाई जाती है, बल्कि मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाई जाती है। आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी एक इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं, कहाँ कहाँ से आपको सर्टिफिकेशन लेना है, कैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो ये सारे मॉड्यूल्स भी हमारे फाइनल ईयर में रहते हैं। तो अगर किसी बच्चे को जॉब नहीं करनी होती, अपना बिजनेस शुरू करना होता है, तो उसके लिए भी एक पूरी ट्रेनिंग उसको फाइनल ईयर में मिल जाती है। बच्चों को मौका मिलता है वाइट कॉलर प्रोफेशनल की तरह काम करने का वुड वर्किंग और प्लम्बिंग इंडस्ट्री में। और अभी हमने सिर्फ ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम एफिलिएट करवाए हैं, कमिंग सेशंस के अंदर हम इसमें मास्टर और PhD तक भी जाने वाले हैं। तो आज इंडिया का बच्चा स्किलिंग के अंदर ग्रेजुएशन कर सकता है, कल वो मास्टर भी कर पाएगा, परसों वो PhD भी कर पाएगा। हम चाहते हैं कि जिस सेक्टर के अंदर बच्चे को इंटरेस्ट है, जिस सेक्टर के अंदर बच्चे का पैशन है, उसी के अंदर वो अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। अच्छा, जब हमने ये सेंटर लास्ट ईयर शुरू किया तो नो डाउट कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, KSU का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, ITIs का, DET डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो काफ़ी अच्छे अतिथिज़ हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, सिंगापुर से आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आ चुके हैं, डेनमार्क के ही डेलीगेशन ने हमारे यहाँ पे विजिट किया है, सिंगापुर से भी आए हुए हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो नेशनल, इंटरनेशनल जितने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो इस सेंटर को विजिट कर चुके हैं। उन्होंने इस सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं उनकी उन्होंने सराहना की है, उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आए हैं। तो आप देखिए कि ये सेंटर जो हमने डेवलप किया है वो पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही डेवलप किया है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमने डेवलप किया है। तो फोटोज़ में आप देख रहे हो ये जो जितनी CNCs मशीन्स वो सब देख रहे हो, ये सारी वही मशीन्स हैं जो इंडस्ट्री आज के टाइम पे अपने प्रोडक्शंस में यूज़ में लेती हैं। हमारा सेंटर जो है वो फर्नीचर फिटिंग स्किल काउंसिल और वाटर मैनेजमेंट प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, दोनों स्किल काउंसिल से भी MOU किया हुआ है। तो इन सेक्टर स्किल्स के साथ में जितनी इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ भी हमें सपोर्ट करती हैं, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, OJT, प्रोग्राम डेवलपमेंट में, तो वहाँ से भी हमें सपोर्ट है। 2-3 इवेंट्स अभी हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो सेंटर है PWP, पीडीलाइट वुड वर्किंग एंड प्लम्बिंग सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर स्किलिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, GSDM को वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए भी सपोर्ट कर रहा है।
हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में सपोर्ट किया, हमने जोनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं गुजरात में उसके लिए सपोर्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार। हम फिर दोबारा जुड़ेंगे एक नए सेशन के साथ में। ये जो सेशंस हैं ये सीरीज़ की फॉर्म में होंगी, जिसमें हम हमेशा एडवांस स्किलिंग और स्किल रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना, सभी को नमस्कार। हम फिर से जुड़ेंगे एक बार। धन्यवाद। હું આશા રાખું છું કે આજે પીડીલાઇટ સંસ્થાના તજજ્ઞોએ આપણને સંસ્થા તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવતા માનવહિત માટે CSRના માધ્યમથી કરવામાં આવતી વિવિધ સમાજ ઉત્કર્ષની પ્રવૃત્તિઓ તથા બાળકોના કૌશલ્ય વિકાસ માટે ડાયરેક્ટરેટ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની ગવર્મેન્ટ ITI કુબેરનગર સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ વિશે જે માહિતી આપી છે તે આપણા બધા માટે ઉપયોગી નીવડશે. હું આ સાથે સંસ્થાના તજજ્ઞ શ્રી નરેન્દ્ર સર, ચેતન સર, સમગ્ર શિક્ષાના વોકેશનલ શાખાના તજજ્ઞ, DET વિભાગ, કુબેરનગર ITIના તજજ્ઞો, સમગ્ર શિક્ષાના MIS શાખાની ટેકનિકલ ટીમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.